58% यंगस्टर्स अपनी मैरिज प्रॉब्लम, अपनी जॉब प्रॉब्लम्स, इंटरव्यू में सिलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसको एयर हॉस्टेस के लिए उसने इतना स्पेंड किया, इतनी ट्रेनिंग्स ली, शी रिजेक्टेड। उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज उसके दांत थोड़े बाहर थे। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। देखो इसमें आई वुड से कि एज कोई लिमिट नहीं है। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਈਲ डिजाइन ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? मेरा जो जॉ लाइन था ये अंदर चला गया था। तो यहाँ मैं आया तो मैंने डॉक्टर साहब को मिला, सोती सेठी सच ए वंडरफुल किड ही इज। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दांत जो है वी मस्ट डू समथिंग। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ। सही कह रहे हो, ठीक है। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, सॉफ्ट फूड खाते हैं, बर्गर्स, च्युइंगम्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, पिज्ज़ाज। अब इससे दांत आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छे रहेंगे? इवन आप मानोगे कई बच्चों के दांत काले हो जाते हैं, यू नो, एट द एज ऑफ 5-6, जब भी परमानेंट दांत आते हैं, जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी में मदर ने एंटीबायोटिक्स खाई होती है, टेट्रासाइक्लिन। यस, आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बहुत लेटेस्ट मेथड है जिसको हम वेनियर्स कहते हैं। बड़ी पतली सी लेयर होती है, आपको जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे आई लेंस होता है ना, इतनी पतली सी एक लेयर होती है, दांत के ऊपर बस हम लगा देते हैं, पूरी ड्रास्टिक स्माइल चेंज हो जाती है। ਅੱਛਾ, यस, एंड दैट्स पेनलेस। ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਸਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। एक सिंगर ने मुझे बड़ा हैरानी वाला कहना, सर मेरा शो सीगा, मैं ये डाल के सिंगिंग कर रहा था। तो अच्छा। आप इमेजिन करो कि कितना कंफर्टेबल होगा ये। ਕਿਤੇ 40,000 ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एब्सोल्युटली। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਈਲਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1.5-2 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੰਡਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल स्पीच। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। थैंक यू। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ, ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਸ, ਮੇਲ ਐਕਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक्चुअली आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि बेसिकली बहुत से, आजकल जब से इंस्टाग्राम है स्पेशली,
सबको शौक है सेल्फी करवाने का, सबको शौक है अच्छी पिक्चर्स करवाने का। तो जब पिक्चर की बात आती है, तो जब पिक्चर में लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी है, तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है ना, वो जाता है स्माइल पे। स्माइल जब किसी को अपनी पसंद नहीं है, तो उनको सबसे पहले होता है कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तभी पिक्चर अच्छी आएगी। सो दैट कुड बी अ रीजन जो हमारे पास इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, क्योंकि उनको कैमरा में अच्छा दिखना है, और उनको अपनी पिक्चर्स, आजकल जब से इंस्टाग्राम है, रोज 2-2 3-3 पिक्चर्स जब तक वो पोस्ट नहीं करते, उनको मुझे लगता है नींद नहीं आती। इवन पॉलिटिशियंस भी, ये मैं आपको ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सीनियर पॉलिटिशियंस आते हैं, उनका भी जब मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि इतना टाइम, मतलब उनकी मार्केटिंग टीम उनको बोलती होगी कि सर आपको इस घंटे में पिक्चर पोस्ट करनी है, इस टाइम पे पोस्ट करनी है। तो मे बी दैट इज द रीजन कि वो इतने कॉन्शियस हो गए हैं आजकल सब, कि अपनी स्माइल को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि हमें तो अच्छा दिखना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾ ਲੈ। ਸੀਐਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੰਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। एक्चुअली स्माइल मेकओवर में सिर्फ यही नहीं है कि आपके दांत टेढ़े हैं तो हम सीधे करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कईयों के दांत बहुत डिस्कलर्ड होते हैं, डिस्कलर्ड मतलब कईयों के थोड़े ग्रेइश होते हैं, येलो होते हैं, तो उनको भी एक ऐसी चीज चाहिए कि हमें बस कैसे भी करके वाइट हो जाए, या हमारी डिजाइन हो जाए, हमारे स्ट्रेट हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत लेटेस्ट मेथड है जिसको हम वेनियर्स कहते हैं। बड़ी पतली सी लेयर होती है, आपको जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे आई लेंस होता है ना, इतनी पतली सी एक लेयर होती है, दांत के ऊपर बस हम लगा देते हैं, पूरी ड्रास्टिक स्माइल चेंज हो जाती है। अच्छा, यस, एंड दैट्स पेनलेस के साथ साथ आई वुड से टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो इतना बड़ा है कि हम पेशेंट्स को ये भी दिखा देते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसे लगोगे, शुरू करने से पहले। ਅੱਛਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3D ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। एब्सोल्युटली, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। पहले ही दिखा देते हैं, उसको मॉकअप कहते हैं। मॉकअप से हम पेशेंट को एक आइडिया दिखा देते हैं कि ये आपका बिफोर है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं, ये देखो। और सबसे अच्छी चीज, पहले होता था कि महीने लग गए, बहुत टाइम लगता था। अब वी जस्ट टेक 3 सिटिंग्स, और मैक्सिमम 2 और 3 सिटिंग्स से ऊपर हम टाइम नहीं लेते। That's it। दांत टेढ़े मेढ़े फिर भी नहीं, वो उस पे आ रहा हूं मैं। हाँ, ये मैंने आपको सिर्फ बताया वेनियर्स का ट्रीटमेंट, जो लैमिनेशन कहते हैं, दांत के ऊपर एक लैमिनेशन हो जाती है, डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन को चेंज करने के लिए, दांत वाइट करने बट डिस्कलरेशन आई वुड से नॉट ओनली डिस्कलरेशन, कईयों के गैप्स भी होते हैं छोटे मोटे, उसको भी हम ठीक कर देते हैं वेनियर से। तीसरा, कईयों के स्लाइट टेढ़े मेढ़े होते हैं, हम उसको भी ठीक कर देते हैं। सो डिस्कलरेशन हो, थोड़ा बहुत गैप हो, या थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो, इन तीनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इज वेनियर्स। बट इफ यू हैव टाइम, और अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, या बच्चों के दांत बहुत आगे पीछे होते हैं, जॉ अलाइनमेंट ठीक नहीं होती है, देन हम उसके लिए ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस अब एडल्ट्स तो कई बार अवॉइड करते हैं कि नहीं, हमें मीटिंग्स हैं, पब्लिक डीलिंग है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, या मैरिज है, तो उसके लिए नया लेटेस्ट ऑप्शन आया, उसको अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अलाइनर्स बेसिकली एक इनविजिबल ऑप्शन है दांत, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अलाइनर। दिस इज वेरी कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड इनविजिबल। रिमूवेबल, इनविजिबल और कंफर्टेबल, ये तीनों ऑप्शंस, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट, तभी इसको इनविजिबल दे दंदा दे अकॉर्डिंगली ये बनूंगा, तैयार होगा। यू आर राइट। सो दिस इज कस्टमाइज्ड, मींस आप मेरे पास आए हो, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो मैं आपका एक स्कैन करूंगा। इट्स कॉल्ड 5D स्कैन, विद इन 10 मिनट्स। वो स्कैन हम सीधा लैब में भेज देते हैं। लैब भी हमारी लोकल नहीं है, इट्स इन यूएस। अच्छा, यस, इट्स टोटली इंटरनेशनल। तो यूएस में हम भेज देते हैं, विद इन 15 या विद इन 20 डेज हमारे पास ये पूरा बॉक्स बन के आ जाता है आपके हिसाब से। देन विल गिव यू दैट बॉक्स। आपको इवन आप हैरान हो जाओगे, पहले ब्रेसेस में 15-20 दिन बाद, महीने में 1 बार 2 बार आना पड़ता है, या तार चुभती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बुलाएंगे ही 3-3 महीने बाद, या अगर आप ओवरसीज रहते हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं, यू कैन डू वीडियो कंसल्टेशंस। सो दिस इज सो एडवांस। एंड जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तो आप आओगे, हमें पता चलता रहेगा आपका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। इट्स सो डिजिटली एडवांस।
ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਸਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एब्सोल्युटली। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% पेनलेस। देखो सबकी बॉडी अलग अलग है, सबको बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत होता है, बट आई वुड से 90% पेनलेस। फील नहीं होता? फील नहीं होता। इरिटेशन तो होंदी होनी है, ला के हुण मूंह दे विच कोई चीज लाई है। अब मैं आपने जैसे स्टार्ट किया, पंजाबी सिंगर्स आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे इतने पंजाबी सिंगर्स हमारे पास आते हैं फेमस। उनमें से मैं कई बार सबके रिव्यूज लेता हूं कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो एक सिंगर ने मुझे बड़ा हैरानी वाला कहना, सर मेरा शो सीगा, मैं ये डाल के सिंगिंग कर रहा था। तो अच्छा। आप इमेजिन करो कि कितना कंफर्टेबल होगा ये। बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ना आजकल लोकल आने लग गए हैं। उसके लिए मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इट शुड बी ब्रांडेड एंड इट शुड बी डन अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ एन ऑर्थोडोंटिस्ट। ओदा रीजन, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूं, आई एम अ ब्रेसेस स्पेशलिस्ट। तो क्या होता है आजकल बड़ी लोकल कंपनीज आ गई हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को ये ऑनलाइन बेच रही हैं। अच्छा। तो पेशेंट को लगता है कि ऑनलाइन मंगवा के ये डाल के मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ ट्रैप एंड इट्स अ बिगेस्ट स्कैम आई वुड से इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। तो ये एक नुकसान की नहीं, आप देखो ना, कोई गाइडेंस नहीं है। अब इसमें ये नहीं है कि मैंने स्कैन करके लैब भेजा और बन के आ गया, वो प्लानिंग करनी पड़ती है पूरी। आप एक देखो, एक प्लानिंग जो है वो डॉक्टर कर रहा है और दूसरी प्लानिंग जो है वो टेक्नीशियन कर रहा है जो आपको ऑनलाइन बेच रहा है। वो उसमें कुछ फोर्सेस, कितने फोर्स हो रहे हैं, कितने ऑप्टिमल लेवल की फोर्सेस चाहिए, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन है। तो अब ऑनलाइन चीज और एक ब्रांडेड चीज जो डॉक्टर दे रहा है उसमें बहुत फर्क होएगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। एब्सोल्युटली राइट। देखो इसमें आई वुड से कि एज कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, हम पहले एक्सरेज लेते हैं, बोन लेवल चेक करते हैं, बोन की डेंसिटी चेक करते हैं। हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं बहुत सारे पेशेंट्स कर रहा हूं जो 60 ईयर्स में है, वो भी करवा रहे हैं, लेकिन उनकी बोन लेवल अच्छी है। ओके, ठीक है ना। कई ऐसे पेशेंट हैं जो 40 के, मैं उनका भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी बोन लेवल अच्छी नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि इट्स अ डॉक्टर who have to decide what is best for you। ये नहीं हो सकता तो ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। Absolutely, so this is not a pure business for you। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। Absolutely। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं कि हमें तो यही करवाना है, कर दो, हम मना कर देते हैं, नहीं हो सकता। अब कल को मैं ये दे दूं, आपके दांत हिलने लग जाएं, तो फिर तो गलत है ना। It should be done under the proper surveillance। प्रॉपर हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, एक तो वी आर द आई थिंक पाइनियर्स। जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी इतनी अवेलेबल होगा। तो हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि हर पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग दे सकें। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇसेस ही लगते हैं या ये भी लगता है? डिपेंड ये भी लगता है, बच्चों के ब्रेसेस भी लगते हैं। अब कई बच्चे आजकल आई शुड नॉट यूज द वर्ड स्पॉइल किड्स, बट यस, बच्चे आजकल थोड़े डिमांडिंग है एंड पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को पेन नहीं होना चाहिए। तो जब बच्चे इतने ज्यादा स्पॉइल्ड हो या इतने ज्यादा पैम्पर्ड हो, आई शुड यूज द वर्ड पैम्पर्ड, तो फिर पेरेंट्स को कुछ नहीं होता। पेरेंट्स बोलते हैं वी वांट द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग, मनी डजंट मैटर टू अस। तो फिर हम डेफिनेटली हम ये बोलते हैं कि ब्रेसिस से बेटर है ये कराओ। एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव देखो, आपकी हेल्थ के लिए this is an investment, this is a good investment। I should not use the word expensive, I should use the word premium। it's a premium thing। so expensive इतना भी नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था, but now because the lab we have directly our clinic is directly affiliated with the brand, so इसलिए ज्यादा expensive मैं नहीं बोलूंगा कि है।
ਸਟਿਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ 40,000 ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। एब्सोल्युटली ये क्यों है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाई? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स: टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, लैब, डॉक्टर्स की स्किल्स। सो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब अच्छी नहीं होगी तो वो आपको जो दांत लगाने हैं या जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो भी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो डॉक्टर्स के पास जितने मर्जी स्किल्स हो वो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो डॉक्टर्स जितना मर्जी अच्छा हो, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी हो, लैब जितनी मर्जी अच्छी हो, तो भी बात नहीं बनेगी। स्किल्स तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चारों चीजें एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये चारों चीजें अच्छी हैं तो सब कुछ ठीक है। सो इसीलिए कॉस्टिंग जो है डेंटिस्ट्री में ये डिपेंड करती है इन चारों चीजों में। अब प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा बहुत तो होगा ही एक्सपेंसिव, बट आई थिंक मैं फिर वही बोलूंगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप एक वो बोलते हैं ना पंजाबी में कहावत, बार बार पैसे खर्ची जाओ या एक बार अच्छी चीज ले लो। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि एक बार खर्चो, अच्छा खर्चो, बार बार मत करो। मैं 100 से भी ज्यादा पेशेंट हर महीने देखता हूँ जो खराब ट्रीटमेंट करवा के हमारे पास आते हैं। अच्छा, मोर देन 100 पेशेंट्स ऑलरेडी के तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा। सो आप एवरेज लगाओ ऑलमोस्ट 1000-1500 पेशेंट हर साल। ये मैं लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। हर साल 1000 से भी ज्यादा पेशेंट खराब करवा के हमारे पास ट्रीटमेंट लेके आते हैं। खराब कराने का मतलब ये है कि मैं डॉक्टर की गलती नहीं बोलता, हम एंड वी हैव अ सिस्टम, वी नेवर से एनीथिंग अनएथिकल अबाउट आवर कलीग्स, बट उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि कईयों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कई बार ऐसा है कि जैसे आपने अलाइनर के बारे में बात की, इसमें लोकल भी आते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करके वो मंगवा लेते हैं, वो यूज करें। पेशेंट्स तो लेमैन है ना, उनको नहीं पता क्या है। ये तो गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जो अनएथिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन चीजें मिल रही हैं, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसकी वजह से खराब हो रही है, जॉ में प्रॉब्लम आ जाता है, जॉ टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम उसको ठीक करते हैं स्टार्टिंग से। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि डॉक्टर्स की स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट चॉइस भी इंपॉर्टेंट है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लैब भी इंपॉर्टेंट। तो मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਠੀਕ नहीं है, ये क्यों होया? देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है डाइट। डाइट में अब पहले की जो डाइट थी और आज की जो डाइट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब हम लोग सॉफ्ट खाना खाते हैं, हम लोग का खाना है पिज्जा, बर्गर्स। आई सी किड्स, लॉट ऑफ किड्स, वी आर ट्रीटिंग मोर देन आई थिंक 600 किड्स। अच्छा, दोज हु आर बिलो 15 इयर्स ऑफ एज। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, सॉफ्ट फूड खाते हैं, बर्गर्स, चिंगम्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, पिज्जाज। अब इससे दांत आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छे रहेंगे? वो उनका जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके जो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, वो दांत के ऊपर चिपक जाता है। एंड रात को ब्रश करने की हैबिट तो है नहीं, सो जाते हैं बस टीवी देखते देखते। नाइट ब्रशिंग बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई तो ऑलवेज से कि मॉर्निंग से ज्यादा रात को ब्रश करना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि आप देखो ना, आप रात को मुंह बंद करके सो जाते हो, कितने बैक्टीरियाज, कितने ज्यादा बैक्टीरियाज प्रोलिफरेट होते हैं, कितने आपके, तो ये दैट इज द रीजन इतनी कैविटीज बढ़ रही है। डाइट एंड लैक ऑफ ब्रशिंग स्पेशली एट नाइट। थोड़ा तजुर्बा की है, यूथ च भी प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बहुत ज्यादा, टीन एज जिस एज च जाके थोड़ा वो सजना सवरना बच्चों का शुरू होंदा है, इंस्टाग्राम वालियां वो आदतां तुसीं कह रहे सी, उस एज च बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, मैं इतने यंगस्टर बच्चे ट्रीट करता हूँ, एडल्ट्स भी, आगे के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो
चट इमीडिएटली बस हमारा सर ट्रीटमेंट कर दो, ट्रीटमेंट करो। पीछे के दांत दे डोंट इवन बॉदर, दे डोंट बॉदर। द रीजन इज कि उनको पिक्चर्स में दिख नहीं रहे, बट पीछे के दांत मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी उसी से ही खाना खाना है। आप इमेजिन करो, आप मेरे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट ने एक पेशेंट भेजा, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा जी। बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक पेशेंट भेजा, तो पेशेंट मुझे बोलते हैं कि जी हमारे को दांत लगवाने हैं। तो मैंने उनको डेट दे दी, क्योंकि हमारे पास वेटिंग चल रहा होता है कई बार। तो कहते नहीं सर जल्दी कर दो, मेरे हार्ट का थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कि प्रॉब्लम है, तो आप पहले दांत लगाओ। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? कहते सर सिंपल सी चीज है, दांत नहीं होंगे तो मैं चबाऊंगा नहीं, मैं चबा नहीं पाऊंगा तो मेरी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो मेरे को, इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, यू नो, एंड दैट्स अ फैक्ट। आपके दांत अगर अच्छे होंगे, मार्क माय वर्ड्स, आपकी पूरी बॉडी ठीक है, तो पूरी जिंदगी ऑफ कोर्स यू आर 60-70 खा सकोगे तो जो मर्जी कर आपको सकोगे। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड, फूड से मिलता है। तो फूड जब आप च्यू करते हो प्रॉपर, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वही बेटर होंगे ना। आप निगल रहे हो खाना, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम तो होंगे ही होंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बॉडी से? सो दैट इज द रीजन योर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ ਵੀ, ਯੂਥ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, जॉब ਦੀ इंटरव्यू ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैटर कर रही है। वैसे अभी थोड़े टाइम पहले भी मेरा एक कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं उनको एक लाइन बोल रहा था, मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ी, आप हैरान रह जाओगे। 58% यंगस्टर्स, 58% अपनी मैरिज प्रॉब्लम, अपनी जॉब प्रॉब्लम्स, इंटरव्यू में सिलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। पर्सनालिटी इतना जरूरी है, एंड पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरी, मतलब पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल कि आप कैसे और चलते हो। स्माइल दी परसेंटेज कितनी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जितने ये यंगस्टर्स, कितने मेरे पास फीमेल पेशेंट आती हैं मैरिज से 4-5 महीने पहले कि हमारे को प्लीज ठीक कर दो, स्माइल अच्छी कर दो, मेरी मैरिज है। आप समझ रहे हो? दिस इज मतलब हैरानी भी होती है। बिल्कुल। जॉब इंटरव्यू से पहले कितने पेशेंट आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हमारे को सर स्माइल अच्छी कर दो, या मेरे दांत बहुत बाहर हैं उसको ठीक कर दो, मेरी इंटरव्यू है, मुझे रिजेक्शन ना हो जाए। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसको एयर हॉस्टेस के लिए उसने इतना स्पेंड किया, इतनी ट्रेनिंग्स ली, शी रिजेक्टेड। उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज उसके दांत थोड़े बाहर थे। Then now I promised her, मैंने कहा I'll change your smile, next year definitely you will be selected। So इतना important है ये। ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ गलती ਹੁੰਦੀ है या नेचुरली इस तरह होता है? बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे जेनेटिकल रीजंस हैं, आपके मदर फादर के जो डीएनए ट्रेट्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या बचपन में बच्चों को बहुत हैबिट होती है, थंब सकिंग हैबिट है, या अंगूठा चूसते हैं जैसे हम बोलते हैं, या फिर कई बच्चों के एडिनॉइड्स होते हैं, माउथ ब्रीदिंग जिसकी वजह से होती है, एयरवे, मुंह से सांस लेते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। टंग थ्रस्टिंग, एक बार बार जिभ ऐसे लगानी, या निप्पल चूसना, उसकी वजह से दांत बाहर आ जाए। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, एक रीजन नहीं है। इवन आप मानोगे कई बच्चों के दांत काले हो जाते हैं, यू नो, एट द एज ऑफ 5-6, जब भी परमानेंट दांत आते हैं, जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी में मदर ने एंटीबायोटिक्स खाई होती है, टेट्रासाइक्लिन। यस, आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ है? हाँ होता है, उसका है इलाज। तो बच्चे आजकल दूध पी के रात को सो जाते हैं, उससे नर्सिंग बॉटल केरीज हो जाती हैं, जिसको हम रात को कैविटीज, दूध पी के जब सोते हैं, तो दूध क्या है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर ही तो है। तो शुगर का कंटेंट हाई हो जाता है तो बैक्टीरियाज हो जाते हैं, कैविटीज लग जाती हैं, इसको नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਈਟ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਈਟ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यस, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? देखो ये उस सिचुएशन में ठीक है जब आप रात को ब्रश कर रहे हो। ठीक है, जब आप रात, आइडियल जो टाइम होता है ब्रशिंग का वो है कि जब आप सोने लग रहे हो उससे पहले आपको ब्रश करना चाहिए, और मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको ब्रश करना चाहिए। सो यू हैव टू ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। किवें करना चाहिए?
अब पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, मुझे हैरानी भी होती है, उनको ब्रशिंग टेक्निक्स ही नहीं पता, रगड़ रहे हैं, जोर जोर से ब्रश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यू हैव टू होल्ड योर ब्रश वेरी जेंटली, आराम से ब्रश करो एंड 2 मिनट से ज्यादा मत करो। एंड ब्रशिंग की एक प्रॉपर टेक्निक है, ये नहीं कि दांत में रगड़ रगड़ के ब्रश करो। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हाफ योर ब्रश शुड बी ऑन योर गम्स एंड हाफ शुड बी ऑन योर टीथ, लाइक दिस। ऊपर से नीचे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। अच्छा, अंदर से भी प्रॉपर, अच्छी तरह से प्रॉपर, ऑल साइड्स, नॉट समथिंग लाइक डिट की। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰਸ਼ 4 ਚਫੇਰੇ ਘਸਾਇਆ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਸ਼। 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ब्रश करना। तभी तो कितने पेशेंट जिनके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको ठंडा गर्म लगने लग जाता है, वो ठंडा गर्म इसीलिए लगता है कि जब आप रगड़ रगड़ के ब्रश करते हो तो दांत की जो फर्स्ट लेयर होती है, जिसको हम इनामल कहते हैं, वो घिस जाती है। जो सेकंड लेयर है वो सेंसिटिव है, तो जब पहली लेयर ही घिस गई तो ठंडा गर्म तो लगेगा ही। फिर हम लंबे कामों में करते हैं, हम रूट कैनाल करते हैं, कैपिंग करते हैं। क्यों? छोटी सी चीज है, 3 चीजें। पहला, ब्रशिंग जेंटल करो, ज्यादा हार्ड मत करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना। तीसरा, गम्स में भी अच्छी तरह से ब्रश करना है, तो ऐसे प्रॉपर, नॉट लाइक दिस। एंड या वन मोर थिंग, टंग शुड बी क्लीन। टंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, उसको क्लीन रखना वो भी ओरल हाइजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਥਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। टूथपिक मैं हमेशा मना करता हूँ, प्लीज मत कीजिए। मॉर्निंग में जब आप ब्रश कर रहे हो तो प्लीज यूज फ्लॉस। फ्लॉसिंग एक पतला सा एक धागा आता है, एंड किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल ब्रांड सारे। आजकल तो वाटर फ्लॉसर्स भी आ गए हैं, पानी का जो जेट होता है वो आ गए हैं। बट नॉर्मल, यू नो, यू हैव टू टाई विद योर फिंगर्स एंड जस्ट डू वेरी जेंटली। टूथपिक नहीं करना। टूथपिक आपको बोन लॉस करता है, गम प्रॉब्लम देता है, उससे और प्रॉब्लम सिवियर हो जाती है। जैसे हार्ड ब्रश करना अच्छी चीज नहीं है, उससे और प्रॉब्लम होती है, ऐसी टूथपिक भी नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फोकस मैं थोड़ा ले जाना चाहना, बहुत सारे केसेस कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इट कैन बी रोड एक्सीडेंट्स, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। घर च कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई या लड़ाई हो गई किसी दी, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਫਿਰ? बहुत सारे हल हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्निक है, अब हम डेंचर नहीं देते। अब जैसे किसी के दांत बिल्कुल खत्म हो गए हैं तो हम इम्प्लांट्स डाल देते हैं। अच्छा, इम्प्लांट्स इज अ फिक्स्ड ऑप्शन। पहले होता था ना, वो डेंचर लगाते थे, बुजुर्ग निकल जाता था। अब मान लो किसी के दांत ही नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए जो फिक्स्ड ऑप्शन हो। तो इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट जो है वो फिक्स्ड ऑप्शन है। और आजकल जो डेंटल इम्प्लांट्स है वो बहुत अच्छे आ गए हैं। हम विद इन फ्यू डेज पूरा का पूरा सेट लगा के पेशेंट को फ्री कर देते हैं। विद इन फ्यू डेज। यस। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਡੈਂਟਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया इत्थे आके ट्रीटमेंट करावे। आई विश। इसीलिए हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का हमने डाटा निकाला एंड वी वर आल्सो शॉक्ड। ऑलमोस्ट 750 NRI पेशेंट्स दे केम। अच्छा, लास्ट ईयर 700-800 पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने आए। आप इमेजिन करो कि वहां बहुत सारे रीजंस हैं। वहां पे एक्सपेंसिव है एक तो, एंड दूसरा नाउ यू नो उनको पता है कि इंडियन डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग, इट्स टू गुड। बिकॉज वो होता है ना कि डॉक्टर्स का काम कैसे चलता है, इट्स वर्ड ऑफ माउथ। बिल्कुल। आप अच्छा काम करोगे
तो आपका चार पेशेंट जो जगह है हमने वो, और दसना है जाके। एंड दैट इज द रीजन अभी विद इन आई थिंक नेक्स्ट वीक वी आर ओपनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिनिक इन नॉर्थ इंडिया इन मोहाली, ਅੱਛਾ, just for our overseas patient. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ Yes, we have ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। yes, we have a team of more than 25 people. 25। Yeah. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, Absolutely. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਐਮ ਆਈ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Absolutely. Our team is so big and they are all capable enough. चाहे वो अब डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि एक ही डेंटिस्ट सब कुछ कर लेता है। बिल्कुल। किसी ने बहुत सही चीज बोली है कि यू नो आप ये, अब मेरे को किसी ने बोला कि सर आप ये भी कर दो, बट मैंने कहा कि अ गुड डेंटिस्ट इज अ वन हु नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो डेंटिस्ट्री में बहुत सारी फील्ड्स हैं। प्रोस्टोडोंटिस्ट होता है जिसको डेंचर लगाते हैं, इम्प्लांट्स के कैपिंग्स करते हैं। उसके बाद एंडोडोंटिस्ट होता है जो रूट कैनाल करते हैं। फिर अच्छा। ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जैसे कि मैं हूँ जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ फील्ड। ओरल सर्जरी एक फील्ड है जो सर्जरीज करते हैं। तो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, ऑल आर सुपर स्पेशलिस्ट, अपने अपने डिपार्टमेंट में सब माहिर हैं। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ हाँ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, क्वैक्स अभी भी हैं। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੰਦ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ अभी भी ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। यू आर राइट, अभी भी बहुत ऐसा होता है, स्पेशली इंटीरियर्स में अभी भी है। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। देखो, वी हैव अ कंप्लीट डेडिकेटेड टीम हियर स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन मुझे लगता है क्लिनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मैं नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल के अंदर एक सर्वे हुआ जी। उस सर्वे में पाया गया कि मोर देन 10 to 15 डेंटिस्ट, डेंटल हॉस्पिटल था वो, ऑल आर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। अच्छा। तो अब डॉक्टर्स पॉजिटिव, पेशेंट का तो रिकॉर्ड है नहीं क्योंकि पेशेंट पे थोड़ा ना आप टेस्ट करोगे, बिकॉज दे आर डूइंग मोर देन 200 पेशेंट्स एवरी डे। ये मैं गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर्स का टेस्ट कराया गया, मोर देन 80% डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं। तो आप इमेजिन करो कि पेशेंट्स तो होंगी। उसका रीजन ये है कि जब इतनी लाइन लगी होती है, इतनी भीड़ होती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टरलाइजेशन। तो वो थोड़ा ना है कि आप वही इंस्ट्रूमेंट बॉयल कर करके थोड़ा बहुत क्लीन करके आप दोबारा से यूज कर लो, बिग नो। सो इन आवर क्लिनिक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हमारे पास जो मशीन्स हैं, दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट मशीन्स। 100% स्टरलाइजेशन होता है। हम अब हमारे पास जो इसको ऑटोक्लेव कहते हैं बेसिकली। वी पुट ऑल द इंस्ट्रूमेंट, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, 3 फेसेस में हम लोग क्लीन करते हैं। पहला वॉशिंग होता है, फिर केमिकल स्टरलाइजेशन होता है, फिर हम उसको एक हॉट एयर चैम्बर में डालते हैं, उसको प्रेशर के अंदर करते हैं। 1 घंटा वो उस पर्टिकुलर प्रेशर में रहती है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर हम उसको निकालते हैं। उसको बोलते हैं 100% स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके तो फेलियर शुरू हो जाएंगे। हम इतनी सर्जरीज करते हैं। मेरा एक पर्सनल सवाल ज़हन च आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਸ਼ੀਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं 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 नहीं, तो नहीं, वो तो हम फेंक देते हैं जैसे ही हम एक अच्छा। या पर बहुत जगह पे मैंने don't reuse। फिक्स्ड है। नो अब आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट हमारे यहाँ पे तो इट्स डिस्पोजेबल। वी डोंट रीयूज। मतलब एक पेशेंट ਦੇ यूज Yes। ਕੀਤੀ ਸਿੱਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। यस वी हैव ईच एंड एवरी पेशेंट में हम सिर्फ सक्शन नहीं, सारी चीजें हम थ्रो कर देते हैं, न्यू सेट लगता है। अच्छा। वी डोंट रीयूज एनीथिंग।
we use disposable things, so वो ਬਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Very ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ अगर रीयूज कहीं हो रहा है तो डेफिनेटली गलत है, नहीं होना चाहिए। एथिकली भी रॉन्ग है और वैसे भी रॉन्ग है 100%, it should not be reused, it should be disposed। हम तो पूरा एक एक चीज, मैं वही बता रहा था ना कि हमारे यहाँ पे तो पूरी टीम है, वी हैव अ टीम ऑफ डेंटल असिस्टेंट्स जो सिर्फ यही देखते हैं कि कितनी स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो रही है। पेशेंट के आने से पहले दूसरा पेशेंट जब बैठता है तो पूरी की पूरी स्टरलाइज होती है, फिर सेकंड पेशेंट को अलाउ होता है। वी हैव अ डेडिकेटेड डेंटल असिस्टेंट्स, वी हैव मैनेजर्स, वी हैव कोऑर्डिनेटर्स जो सारा दिन यही देखते रहते हैं कि किस पेशेंट की अपॉइंटमेंट है, किसको कब एंटर करवाना है, सब कुछ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਫੇਜ਼ਸ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। स्माइल डिजाइनिंग का जो प्रोसीजर है ये ना आजकल ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज्यादा सिंपल। मतलब 3 सिटिंग्स मैक्सिमम हम लोग लेते हैं जिसमें हम ये भी दिखाते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसा लगेगा, और पेनलेस है, बहुत कंफर्टेबल है, एंड यू गेट अ ड्रास्टिक स्माइल चेंज। तो एक वो बहुत अच्छी चीज होती है इसमें। हम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सर्जिकल प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पतली सी लेयर, जैसे आई लेंस होता है ना, आई लेंस होता है ना, जैसे हम लैमिनेशन करते हैं किसी बुक की या कुछ, उतनी पतली सी लेयर हम आपके दांत के ऊपर बस लगा देते हैं, एंड ये परमानेंट है, कभी निकलेगी नहीं जी। और सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि इसका डिस्कलरेशन नहीं कभी होता। अच्छा। मतलब अगर कोई हमारे पास आ रहा है जिसके दांत येलो हैं, तो हम ये अगर लेयर लगा दें व्हाइट कलर की, तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्कलर्ड हो जाएगी। लाइफ भी इसकी 5 से 10 साल, इसको कुछ नहीं होता। एंड ये हम पतली सी लेयर जब लगा देते हैं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट 2 से 3 सिटिंग्स में हम कंप्लीट कर देते हैं। इट्स वेरी इजी, सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड टू चेंज योर स्माइल। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ 3 ਸਿਟਿੰਗਸ ਔਰ 3 ਸਿਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? कितने पेशेंट हमारे पास ओवरसीज से यही करवाने आते हैं, तो उनके पास हमेशा एक टाइम लिमिट होता है बिल्कुल कि मुझे तो हफ्ते के अंदर खत्म कर दो, तो कई बार हम हफ्ते के अंदर भी खत्म कर देते हैं, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हम विद इन 4 to 5 डेज के अंदर भी कंप्लीट कर देते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी कर जाता है। यस, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 3 सिटिंग में महीने लग जाते हैं, नहीं, वेरी इजी। मैक्सिमम आप लेके चलो 10 दिन के अंदर हम फिनिश कर देते हैं, विद इन 10 डेज 3 सिटिंग्स एंड द जॉब इज डन। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਕਾ, ਫॉर श्योर। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और उन्हों का फ्यूचर बन रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेम पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।